Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 10th and in class 10th we are learning how do organisms reproduce. This is another chapter after the live processes. I told you that CBSE has modified your syllabus and the control and coordination is totally removed. That's why we have switched to the next chapter, that is how do organisms reproduce. In this chapter, I taught you two topics in the previous session. Like as I told you, what is reproduction? What is the need of reproduction? Clear? I make you understand I think you are much clear. You understood well what is reproduction and what is the need of reproduction. And by taking example of cell division, I make you understand what is reproduction. Like as our life start from a सिंगल सेल दैट इज जाइगोट. अगर हम अपनी लाइफ के बारे में स्टार्ट करें तो आवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज व्हाट, जाइगोट. हाउ फ्रॉम द जाइगोट वी डेवलप, कैसे जाइगोट से हम डेवलप हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. एंड बायोलॉजी इज द ओनली ब्रांच वेयर द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन इज सेम. रिमेंबर, because in mathematics when you will divide something it will get reduced, and when you multiply it will add. But in the biology, if you divide, if you say that cell division or cell multiplication both sound same. ठीक है, दोनों की जो मीनिंग है वो सेम आ रही है. जैसे सपोज अगर कोई सेल है, वन सेल इज देयर दैट इज डिवाइडिंग, दैट डेवलप इनटू द टू सेल. वो कितनी सेल्स बना रही है? दो सेल्स बना रही है. ठीक है. एंड इफ यू आर सेइंग मल्टीप्लाई, द सेल इज मल्टीप्लाइंग, द सेम थिंग इज हैपनिंग. वही सेम चीज हो रही है. तो बायोलॉजी इज द ओनली ब्रांच वेयर डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज सेम. सो आई टोल्ड यू द व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन. नीड क्या है रिप्रोडक्शन की? फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, फॉर वेरिएशन. Clear? Then by cell division I make you understand what is cell division. Without cell division any organism or any cell cannot divide. Clear? Like as up till now you knew that what is reproduction. If any organism is performing reproduction, then the organism produce the offspring as its own. जैसे वो खुद होता है वैसे ही वो offspring को produce करता है. It means that something transfer from the parent to the offspring. Have you listened that ever that cow produces lion or lion produces cow? Never. You can never listen. ठीक है, आप कभी सुन भी नहीं सकते. Then how is it possible? Because when any organism show reproduction, the organism or parent cell transfer something to its offspring. वो अपने offspring के अंदर क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है. अब अगर मान लो कोई पेरेंटल सेल है, ठीक है, अगर वो सारा कंटेंट अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर कर देगी तो क्या तुम समझते हो कि पेरेंट सेल का क्या होगा? ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई पेरेंट है, उसने जितना भी उसके पास जो भी कुछ है वो अगर अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर कर दे रहा है तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं. उसकी कोई डिग्निटी ही नहीं रहेगी. ठीक है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी. बात समझ में आई? दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, इन द सेल द न्यूक्लियस इज देयर, इन द न्यूक्लियस द क्रोमोसोम्स आर देयर, दे गेट मल्टीप्लाई. वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले क्या हो जाते हैं? वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. क्या करते हैं? कॉपी करते हैं. ठीक है, जब वो कॉपी करते हैं तो उससे क्या होता है? एक क्रोमोसोम्स की कॉपी और प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, एंड दैट क्रोमोसोम डिवाइड, वही क्रोमोसोम्स क्या होता है? डिवाइड करता है. क्लियर है? तो दैट्स व्हाई इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू दैट बेसिक इवेंट ऑफ द रिप्रोडक्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन. विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन एनी सेल कैन नॉट डिवाइड. अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर सकती. कंफर्म है? ठीक है, so that's why what is the basic event of the reproduction? DNA replication. Either it is asexual or it is sexual. In 8th class you came to know that there are two type of reproduction, asexual and sexual. Here you will study properly each type of reproduction. ठीक है, by so many examples. So whether it is asexual reproduction or it is asexual reproduction, the DNA replication will be the basic event of further reproduction. Without that no cell और नो ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड. क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए उसके पास सेल होना जरूरी है, क्योंकि सेल ही पार्टिसिपेट करती है. ठीक है, सेल का ही रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन ही करती है. जैसे मान लो अगर कोई बॉडी में गैमीट्स बन रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है. ठीक है, तो बॉडी में जब गैमीट्स बन रहे हैं तो गैमीट्स में भी सेल डिवीजन हो रहा है. अगर अमीबा डिवाइड कर रहा है तो वहां पे भी क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है. सेल्स अलग हो रही हैं. जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहला बेसिक इवेंट तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन. When there is a DNA replication, the chromosomes get multiply. क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब डीएनए मल्टीप्लाई हो जाते हैं. और उन्हीं का क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है.
बात समझ में नहीं? तो इस तरह से इस सेल डिवीजन में देख रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। किस टाइप का सेल डिवीजन है, माइटोसिस। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में माइटोसिस बता रखा है कि व्हेनेवर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैज टू बी सेम, अगर क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रखने हैं, देन विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, माइटोसिस। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है, जैसे गैमीट्स के केस में, तो देयर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन विल टेक प्लेस, मियोसिस। वहां पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। तो only there are two type of cell division, one is mitosis, another one is the meiosis. Clear? Like as any organism is there who is going to participate in the sexual reproduction, so their gametes will participate in that reproduction. That's why there is a need of meiosis. meiosis की need होगी। मैंने आपको यहाँ पे एक बताया भी था कि जैसे we are having how many chromosomes in one cell, 46। अब सोचो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि देयर आर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 46 एंड 46 दोनों मिलके कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 92। सोचो, बट क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं दे आर द आइडेंटिटी कार्ड फॉर एनी स्पीसीज। वो स्पीसीज के लिए आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे ह्यूमन, होमो सैपियंस ह्यूमन के लिए 46 नंबर ऑफ chromosomes present in a cell, this is the identity of the human, that is the identity of the species. So 92 chromosomes हो जाएंगे तो उसका आइडेंटिटी तो पूरी तरह से चेंज हो गई। That's why that has to be maintained. That's why there is a meiosis cell division take place when there is a formation of the gametes and number of chromosomes reduce. Number of chromosomes क्या हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देखिए जैसे मान लो अगर सेल में, मेन सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो गैमीट्स में कितने होंगे, 23। और अब बताओ 23 फर्टिलाइज होंगे तो क्या बन जाएंगे, 46। क्लियर हो गया होगा कि माइटोसिस और मियोसिस क्या है, एंड वेयर डज माइटोसिस टेक प्लेस एंड वेयर डज मियोसिस टेक प्लेस। now in the next slide you just come to know that what is the difference between the mitosis and meiosis। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ देख सकते हो, वन सेल डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। ठीक है, बायोलॉजी में जब भी कोई सेल्स प्रोड्यूस होती है तो उसको हम डॉटर का नाम देते हैं, ठीक है, याद रखना। और जो सेल डिवाइड हो रही है उसको पेरेंटल सेल का नाम देते हैं। तो ये सेल क्या हो गई, यहाँ पे पेरेंटल सेल हो गई, पी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये पेरेंटल सेल है। और ये जो नीचे जो भी सेल्स हैं, दीज आर द डॉटर सेल्स। तो यू कैन सी इन द meiosis type of cell division 4 daughter cells are produced, and in the mitosis how many daughter cells are produced, 2 daughter cells are produced. Here you can see in the meiosis the each gamete, each cell is receiving only half number of chromosome, means 23 23 23 and 23 in this way. But here if suppose the parent cell has 46 chromosome, then each cell, whatever daughter cells will produce, they will also have 46 number of chromosome. So this thing I revised you, okay, in the previous session I taught you these things, clear? So today I have started the class, that's why I revised you all the topics which we discussed in the previous session. Now come to the next topic, cell division. I told you what is cell division. Now as I told you that cell division means without which process the cell division is not possible, DNA replication. And DNA, when you will read NCERT, and I request you please attend the session with your NCERT. While attending the session, keep the NCERT with you, and whatever topics I am just teaching you, you should read those topics in your NCERT. That will be very fruitful for you, clear? So when you will read NCERT, you will get these sentences that do organism produce their exact copy, क्या वो अपनी exact copy produce करते हैं, क्या क्या उसमें कुछ वेरिएशन भी आता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है ए, कोई ए ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसने अगर कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया तो जो बी प्रोड्यूस होगा क्या वो उसका ए का एग्जैक्ट कॉपी होगी, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो जो न्यू इंडिविजुअल है क्या वो सिमिलर दिखता है कि आइडेंटिकल दिखता है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सिमिलर और आइडेंटिकल दोनों को बोथ आर नॉट सेम सेंटेंस, दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। आप देख सकते हो तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, कैसे आप कह सकते हो डिफरेंट है, जैसे सिमिलर मतलब, ठीक है, और आइडेंटिकल मतलब व्हेन यू विल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर तो यू आर आइडेंटिकल, जैसे आप हो वैसे ही दिख रहे हो। अब कोई अगर खड़ा हो जाए कहे कि हम मिरर में तो आमिर खान लग रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, वो सिमिलर है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिकल हो सकता है कोई आमिर खान के सिमिलर हो, लेकिन आइडेंटिकल थोड़ा ना होगा। समझ में आई बात? हम वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। हम आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब टू कॉपी कहते हैं, सुना नहीं होगा, एकदम टू कॉपी है, ठीक है। जैसे कॉपी, जैसे आपने किसी चीज की जेरोक्स करा ली,
आपके पास कोई नोटबुक है, कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने उसकी जेरोक्स करा ली, तो वो उसकी क्या है, आइडेंटिकल है। जैसा उसमें अगर कोई उसमें आपने कुछ सिंबल लगा रखा है, कोई डॉट लगा रखा है, द सेम डॉट विल आल्सो बी देयर इन द जेरोक्स कॉपी, तो इसको बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी। तो न्यू इंडिविजुअल लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। जैसे अगर होमेंस है, होमोसेपियंस है, ठीक है, अब वो चाहे नेपाली हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, उनकी जो बॉडी डिजाइन है वो तो सिमिलर है ना, ठीक है, वो अलग है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर है। टू प्रोड्यूस सिमिलर बॉडी डिजाइन दे प्रोड्यूस सिमिलर ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, जो डीएनए है दैट प्रोवाइड द ब्लूप्रिंट। जैसा डीएनए होगा, जिस टाइप का डीएनए होगा, वैसे ही ऑर्गेनिज्म का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ गया। जैसे हम लोग पेपर डिजाइन करते हैं तो हमें ब्लूप्रिंट प्रोवाइड की जाती है कि यू हैव टू डिजाइन द पेपर, शॉर्ट क्वेश्चंस इन दिस वे, लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस वे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो दैट इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। जैसे आप जब भी आप अपना हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, आपने सुना ही होगा, आपके फादर ने कंस्ट्रक्शन कराया होगा, तो कंस्ट्रक्शन के पहले एक मैप डिजाइन होता है कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन होना है, तो वो कंस्ट्रक्शन का जो मैप है एक्चुअली वो ब्लूप्रिंट है। जैसे वो मैप बना है एकदम वैसे ही आपका घर का भी क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। सेम एज जो हमारी बॉडी डिजाइन है वो सिमिलर क्यों होती है, बिकॉज वी गेट द ब्लूप्रिंट, क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट मिलती है। जैसे ब्लूप्रिंट होती है वैसे ही बॉडी की डिजाइन भी होगी। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ मैकेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दैट इज ट्रू, द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मैकेनिज्म दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हैं, दे आर इन देयर बॉडी द डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, the same DNA transfer in the offspring body and that provide the blueprint, same as the blueprint the body design develop, ठीक है। That's why lion always produces lion and cow always produces cow, ठीक है, समझ में आया, कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये हो गया तुम्हें कि डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर एग्जैक्ट कॉपी, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन में क्या है, अगर आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि व्हेन देयर इज अ रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, वो एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है, एंड यू कैन नॉट रिलाई ऑन द बायोकेमिकल प्रोसेस। आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है, फुल एकदम 100% आप रिलाई नहीं कर सकते। देयर कैन बी एरर, उसमें एरर आ सकता है, एंड दैट एरर इज नोन एज वेरिएशन। इफ ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन एनी एरर अराइज, एनी एरर अपीयर, ठीक है, देन दैट लीड टू द वेरिएशन। वो क्या बना रहा है, वेरिएशन बना रहा है। तो इन दिस वे two cells receive their DNA content from the parent cells. They may have DNA possessing some variation. उस DNA में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, that because of the DNA replication. These variation may be small or large. या तो वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा या तो वेरिएशन कम होगा। क्लियर है। अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, then the cell will die, सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि that type of मतलब that much of variation कैन नॉट बी टॉलरेटेड, कैन नॉट बी बियर्ड बाई द सेल। उतना वेरिएशन सेल बियर नहीं कर सकती, उसकी जो सेलुलर मशीनरी है वो बियर नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे अगर आप एक कोई मोटर है, कोई चार्जर है, कोई सेलफोन है, अब उसमें आप पता लगा वो 5000 mAh का है, तो उसमें अगर आपने 10,000 15,000 mAh का चार्जर लगा दिया तो क्या होगा, वो उतना वेरिएशन वो टॉलरेट कर सकता है, नहीं कर सकता, ठीक है, और आपका फोन खराब हो जाएगा। सेम एज विद द सेल आल्सो, अगर सेल को एक पर्टिकुलर मतलब मॉडरेट वेरिएशन मिल रहा है, देन द सेल विल सर्वाइव, उसकी जो सेलुलर मशीनरी है वो तो उसके साथ एडजस्ट कर लेगी। बट अगर वेरिएशन सीवियर है, देन द सेल विल डाई, सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। समझ में आया। तो वेरिएशन इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना भी ज्यादा वेरिएशन ना आ जाए कि सेल की डेथ ही हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसी से समझ सकते हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। Like as I'm just taking example of 10 people, 10 लोग हैं, in the 10 people they all have मतलब they all catch that which disease, corona। 10 को कोरोना हो गई, समझ में आया। तो 10 लोग हैं, उन 10 people are suffering from that COVID-19, ठीक है, उनको कोरोना हो गया। अब 10 में कुछ वेरिएशन, कुछ के पास वेरिएशन था। वेरिएशन मतलब क्या, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, ठीक है, वो फिजिकली फिट थे, साइकोलॉजिकली भी फिट थे। तो 10 में से क्या हुआ, जो 7 और 8 थे वो रिकवर होके घर चले आए। लेकिन उसमें से जो दो या तीन है जिनके पास वेरिएशन नहीं था उसके अकॉर्डिंग,
उसके अकॉर्डिंग उनकी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग थी, वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए। तो प्रेजेंट जो सिनेरियो है उससे आप इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो वेरिएशन क्या हेल्प कर रहा है, 10 में से जो 7 जो पीपल हैं व्हेन दे आर जस्ट व्हेन दे आर मेंटेनिंग देयर सेल्फ, ठीक है, जब वो रिकवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो वेरिएशन उनको सर्वाइवल में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम थिंग हैपन विद द अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जब ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म उस ड्रास्टिक चेंज को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं वहां पे, तो दे सर्वाइव, तो उनकी जो स्पीसीज है वो कंटिन्यूएशन में आ जाती है। बट सो मेनी ऑर्गेनिज्म आर दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, दे आर नॉट एबल टू अडॉप्ट एंड दे वाइप्ड आउट, और वो वाइप्ड आउट हो जाते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डायनासोर्स, आप डायनासोर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। बात समझ में आई? या 1 साल के बाद जितने भी लोग सर्वाइव कर जाएंगे, जितने भी लोग सही हेल्दी रहेंगे, तो उनको भी आप कह सकते हो कि इनके पास वेरिएशन था, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, दे आर सर्वाइविंग। अभी भी ये क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ देयर इज ए वेरिएशन अमंग द ऑर्गेनिज्म, देयर इज ए लेस चांस दैट दे वाइप्ड आउट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट में वो वाइप्ड आउट नहीं हो पाएंगे। एंड वेरिएशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन क्या है, की है इवोल्यूशन की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस सेशन में भी बताया कि वेरिएशन कैन बी इनहेरिटेबल। ठीक है, हेरिटेबल वेरिएशन हो सकते हैं, हो सकता है वो हेरिडिटी से हमें मिल रहे हैं, हो सकता है वो एनवायरमेंटल वेरिएशन हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी के पेरेंट जो हैं वो उनका कलर काफी फेयर है, ठीक है, लेकिन जो उनका ऑफस्प्रिंग है उसका कलर उतना फेयर नहीं है, तो हो सकता है उसका एनवायरमेंट ही ऐसा हो। समझ में आई बात? तो एनवायरमेंटल वेरिएशन भी हो सकता है, हेरिटेबल वेरिएशन, इनहेरिटेबल वेरिएशन भी हो सकते हैं, जो हमें इनहेरिट मतलब हमें क्या हो रहे हैं, हमें अपने पेरेंट्स से, उनको उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। तो इस टाइप से 2 टाइप के वेरिएशन हो सकते हैं, और वेरिएशन के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो दोनों के वेरिएशन एक ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। जैसे फॉर टू प्रोड्यूस अस, ठीक है, देयर आर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल का जो वेरिएशन होगा और जो फीमेल का वेरिएशन होगा वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से वहां पे वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है देन देयर विल बी अ लेस वेरिएशन, तो वहां पे वेरिएशन का सोर्स केवल डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा या म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस कोई अगर आ जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। आपकी बुक में बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन का। वैसे तो कोविड-19 से अच्छा कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बाई टेकिंग एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इन दैट पैरा इट इज रिटन दैट देयर इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, मान लो वो पॉपुलेशन ए है। लेट मी टेक वन blank slide and I explain you. There is a population of bacteria, उसका नाम हम रख देते हैं A, ठीक है। This is a population of the bacteria. Now bacteria cannot survive in the global warming. Earlier there was no global warming. पहले global warming नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे global warming बढ़ने लगी। Now the A population of the bacteria start dying, उनकी डेथ होने लगी। But among the population of A bacteria, few bacteria survive. उसी में से कुछ बैक्टीरिया क्या कर गए, सर्वाइव कर गए। इसका मतलब है उनके अंदर क्या था, वेरिएशन था। क्लियर है? नाउ बी बैक्टीरिया, जो बी बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, दे विल डेवलप अ पॉपुलेशन, उनकी एक पॉपुलेशन डेवलप होगी दैट कैन सर्वाइव इन व्हाट, इन द ग्लोबल वार्मिंग। A bacteria cannot survive in global warming, but B bacteria, those have developed from, those have variation, and they are the type of A bacteria, वो A bacteria की ही type है, लेकिन उनके पास वेरिएशन था, दे सर्वाइव। ठीक है, ए में से कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर गए ग्लोबल वार्मिंग में, एंड व्हेन दे विल रिप्रोड्यूस, दे विल प्रोड्यूस अ पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया दोज कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन इन ग्लोबल वार्मिंग। तो आपके बुक में क्वेश्चन होगा कि द वेरिएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज और पॉपुलेशन। तो यहां से आप समझ सकते हो, मान लो कोई एक बैक्टीरिया था, उसका नाम था बी, तो क्या केवल बी बैक्टीरिया को बेनिफिट मिला कि बी बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस हुई उसको बेनिफिट मिला? ठीक है, केवल बी को नहीं बेनिफिट मिला ना, उसने जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस की उसको पूरे को बेनिफिट मिला। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ बी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन, वो ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है,
वेरिएशन के सोर्सेज क्या हैं, वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। वेरिएशन सीवियर नहीं होने चाहिए, ठीक है, माइल्ड वेरिएशन आर गुड, ठीक है, थोड़े मोड़े वेरिएशन ठीक है, लेकिन जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया तो बहुत लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रगल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज वेरिएशन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब ये मैंने स्लाइड लगाई, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन समझ में आ गया आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफ वेरिएशन आर माइन्यूट, मैंने बता दिया, ठीक है, और एंड बियरेबल देन सेल सर्वाइव, अदरवाइज when there will be a drastic or severe variation the cell will die, so variation may be useful or disastrous or fatal। जहां पे भी fatal आ जाए उसका मतलब है जो डेथ काज कर दे। आजकल ये वर्ड आप बहुत पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कि fatal मतलब जो डेथ काज कर दे। क्लियर। नाउ कम टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। there are two type of basically there are two type of reproduction, asexual and sexual। बायोलॉजी में एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी भी वर्ड के पहले ए लग जाए, जैसे यहाँ पे लग गया ए सेक्सुअल, इसका मतलब सेक्सेस नहीं है, देर आर नो डिफरेंट सेक्सेस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा मेल होता है फीमेल होता है। इन asexual reproduction you cannot say one organism is male one organism is female, like as in amoeba you never listen। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अमीबा मेल होता है या अमीबा फीमेल होता है, पैरामीशियम मेल होता है कि फीमेल होता है, नेवर। वाई? बिकॉज दे आर लोअर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देर इज नो मेल एंड फीमेल अमंग दोज ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म में कोई मेल एंड फीमेल की बात नहीं होती, ठीक है, समझ में आई बात। तो दे शो विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, asexual, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड दैट प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई देर इज नो सेक्स, कोई सेक्सेस नहीं होते, and only one parent is involved, that is known as asexual reproduction। another one that is known as sexual, there will be a sexes male and female, ठीक है, and different sexes, आप कह सकते हो different sexes और male और female, they will involve and offspring will produce by the just involving of two parent। कितने parent involve होंगे, दो parent involve होंगे। क्लियर है। now come to the next part। अब इस डायग्राम में देखो अगर तुम, तो this is the diagram which is showing the reproduction in amoeba। now you can by picture you can just understand how what is asexual reproduction। in this reproduction what is happening, one parent in cell is there, that is amoeba। now amoeba is dividing। now you can see in the picture, is there any other organism involved in this reproduction? no, only one amoeba is involved। this amoeba just divide, ये अमीबा क्या कर रहा है, डिवाइड कर जा रहा है। कितने इंडिविजुअल में, दो इंडिविजुअल, दो डॉटर सेल्स। अब इनको डॉटर सेल्स बुलाओ, ऑफस्प्रिंग बुलाओ, इनके बच्चे बुलाओ, जो भी बुलाओ, ठीक है, बट रिप्रोडक्शन तो हो गया ना। रिप्रोडक्शन में आपने यही तो पढ़ा है कि व्हेन वन इंडिविजुअल फॉर्म द ऑफस्प्रिंग, उनके जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, रिप्रोडक्शन बुलाते हैं। तो रिप्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया। अब बताओ इन दिस रिप्रोडक्शन हाउ मेनी पेरेंट आर इन्वॉल्व, ओनली वन, एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व है। क्लियर है। अगर इफ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड, अब बताओ ये दोनों दो ऑफस्प्रिंग है वो एक ही पेरेंट से तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दे विल लुक सिमिलर एज वेल एज आइडेंटिकल। एक ही पेरेंट से इन्वॉल्व है। जैसे एक चौक है, उस चौक को अगर ब्रेक कर दो तो दोनों चौक में सेम प्रॉपर्टी है, कोई डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो दैट्स व्हाई इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बट हेयर इन द दिस बिलो ऑफ दिस पिक्चर अनदर डायग्राम, गैमीट्स हैं, ये दोनों गैमीट हैं, ये दोनों गैमीट एक दूसरे से एकदम सिमिलर है। अब तुम कहोगे सर गैमीट्स तो डिफरेंट होते हैं, नहीं, देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म दोज प्रोड्यूस द गैमीट, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब वो दिखने में आपको लगेंगे नहीं कि मेल है कि फीमेल है। क्लियर। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट, बट हेयर यू कैन आइडेंटिफाई दिस इज फीमेल गैमीट, दिस इज मेल गैमीट। हेयर दिस इज अ गैमीट ऑफ द वुमन, ये स्पर्म है, और ये क्या है, ओवम है। तो इन दिस प्रोसेस व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, in this process you are observing only one cell is involved, only one parent cell is involved, but here you are observing two cells are involved, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट भी तो होंगे। अब वो अलग बात है, दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पे होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ह्यूमन के केस में मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, बट वहीं पे फ्लावर्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं वेयर द एनिमल्स एंड ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। क्लियर है। तो इस तरह से समझ में आ गया। चलो ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इन दिस सेशन वी जस्ट डिस्कस अबाउट द asexual reproduction। in the next session I will just bring you for you, and in that session we will discuss how the asexual reproduction take place, what are the modes of asexual reproduction, everything clear। so revise whatever I taught you because only few lessons are there, that's why I am just going ahead slowly, ठीक है। तो बहुत एक ही दो लेसन बचा है, अगर मैंने एक मंथ भी कंटिन्यूअसली पढ़ा दिया तो इट विल बी कंप्लीटेड। क्लियर।
So you understood well, please write down in the comment box, and if you do have any problem, let me know, then I will solve your doubt. Clear? So I'm completing this session. Stay at your home, stay fit, stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat, love you, goodbye.